welcome to our home. I am Parushi and this is Mama. And you are watching us on Roop Vatika, where heritage becomes luxury. My mom's style is, she does not really care about comfort. She's so much into styling, and she always wants to wear something that is rooted in our culture, that does signify how Indian wear is always embraced, and that is her style mostly. Like, she also wants to try fusion sometimes. She wants to inculcate modern silhouettes, but she always has that ethnic root with her. True. Yes, absolutely, all the time. To the point that this top that I'm wearing right now is hers. So my style has sort of picked most of its value from Mummy. Seeing what she used to wear as a child, how she used to carry herself with so much of grace, and that has come into me, that trying to always be graceful, no matter what are you're wearing Western or Indian or whatever, it should be graceful. You should have that grace in you. So that's how she inspires the style. We have not twinned in the way that we're wearing the same outfit, but we try that we contrast each other, like color. Like, for example, right now she's wearing blue, orange, and I'm wearing blue. So blue and orange together make like a symphony. So we try to do sometimes, like she was wearing purple one time and I was wearing yellow, and the yellow had some purple flowers and the purple had yellow intricate details. So that's how we try to twin. We try to make a palette together. Now, this is funny because the outfit that we picked for her wedding anniversary was something that I picked. She wanted to wear something in a lehenga genre, but I was like, you should wear a bodycon dress. And I picked this beautiful jewel-studded corset bodycon dress, and I wanted her to wear that. She did not trust me initially. She was like, no, I would not look like a bride, it's my function. But she was obviously लहंगे में लगता है bride है, bodycon dress में नहीं लगता है. Yeah, so I would इन्होंने जो भी suggestion दिया वो बहुत अच्छा मेरे लिए, मुझे बहुत confidently. I would pick something that is a fusion. कोई कुछ मॉडर्न है स्टाइल में, लुक में, बट स्टिल इंडियन है, जो उनकी बॉडी को सूट करेगा. सो येस, आई पिक्ड दैट ज्यूल ड्रेस फॉर हर फॉर द इवेंट. सो आई वुड पिक समथिंग सिमिलर अगेन. थैंक यू पारुषी. मम्मी, because she can never decide. How much time does it take to decide, for you to decide what you want? हाँ, नहीं कर पाती, कंफ्यूजन में रहती हूँ, बट ये हेल्प करती है मेरे कि नहीं ये बट हाँ बिल्कुल वही रहता है. बट मुझे जो अच्छा लगता है वो इसको भी अच्छा लगता है मोस्ट द टाइम. बट ये कहती है कि ये वाला, तो मैं कॉन्फिडेंटली हाँ ठीक है ओके. या तो मम्मी इज मोर ऑफ कि मैं सब ट्राई करूँगी. हाँ, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है, एंड आई एम मोर लाइक मुझे यही चाहिए. So इसलिए I take a little less time. But if I don't know what I want, then I can take more time as well. Yeah. I love you, and she is so sweet and she is so kind, and I just hope every day that I can borrow things, not just from her wardrobe. I steal them most of the times. Yes. But from her personality, from her character, from the person who she is. So I want to be a reflection of her. Always. Yeah. Thank you. Special moment. जब मुझे कोई कहता है कि आप पारुषी की मम्मी नहीं लगते. Embarrassing for me. सिस्टर्स लगते हैं. और इसका क्वालिटी है कि ये हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प करती है. एक्चुअली जो मुझे लगता था कि बचपन में मैं इनके साथ करती थी कि ये अच्छा लगेगा, वो अब मेरे साथ होता है कि ये अच्छा लगेगा मम्मी, ये पहनो, ये ज्वेलरी अच्छी लगेगी, ऐसा करो. तो उसमें ये मेरी बहुत हेल्प करती है कि ये मेरी बेटी है. प्लीज मम्मा, बहुत प्राउड हो कि ये मेरी डॉटर है, इतनी प्यारी. सबको लगेगा स्क्रिप्ट मिली है. सच में. और नहीं, हम लड़ते भी बहुत हैं, लड़ाई भी बहुत होती है हमारी लड़ाई भी होती है. हम उसको फिर बेसिकली हम फिर वो इस पे आ जाते हैं लवी डबी वाला कि नहीं यार चल छोड़ जाने दे. माई एथिक्स एंड जो मुझे अपने इंडिया के कल्चर से जो बहुत प्यार है वो याद रखे. बस मुझे यही अच्छा लगता है कि वो चीज़ें नहीं कहीं पर भी. जैसे मेरा बेटा दुबई में है, ये मुंबई में है, तो कल्चर बहुत
आजकल जेनजीज जो चल रहा है ट्रेंड, वो उसको तो ठीक है फॉलो करें, बट एक कल्चर जो हमारा है इंडिया का और जो हमारे एथिक्स है फैमिली के, उसको लेके आगे बढ़े। इवन इन स्टाइलिंग Styling, yes. हमेशा कोशिश करती है कि इंडियन फैब्रिक्स और इंडियन टेक्सटाइल्स और जो कारीगरी है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं हम समझें और उसको अपने स्टाइल में, अपने वार्डरोब में लेके आए। हमेशा ऑलवेज मतलब हम वेस्टर्न, ज़्यादातर अभी वेस्टर्न की तरफ जा रहा है टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूजन और वेस्टर्न फ्यूजन करना चाहिए इंडियन। और जैसे अभी हमने जो ड्रेसेस लिए हैं रूप वाटिका से, उसमें भी इंडियन और फ्यूजन दोनों मिक्स कल्चर है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओकेजन है 30th एनिवर्सरी थी मेरी, उसके ओकेजन के लिए हमने रूप वाटिका से परचेज़ किया और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, अमेजिंग रहा कि हम, और जो हमें चाहिए था वो हमें रूप वाटिका ने हमें चूज़ कराया, और जो भी मतलब उनका जो भी उनके आउटफिट्स की जो वैरायटी थी वो बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस, और हाँ आउटफिट्स के डिज़ाइंस, और वेस्टर्नाइज में भी और इंडियंस में भी बहुत काफ़ी अच्छी वैराइटीज। ओवरऑल सर्विस अमेजिंग ओवरऑल सर्विस, इवन ट्रायल से लेके और जब हम पिक करने गए ड्रेस, उस तक का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही बेस्ट रहा। मतलब कोई भी स्टाफ इज़ वेरी गुड। रूप वाटिका से ऐसे जुड़े कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं। लास्ट ईयर उनकी डॉटर का शादी थी, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया। हम बहुत प्रीतमपुरा में कल्कि एंड ऑल बहुत से ब्रांड्स को हम एक्सप्लोर कर रहे थे, बट लास्ट हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हम लोग रूप वाटिका पे गए और वहाँ पर हमने जैसे ही कलेक्शन देखी, हमें समझ में आ गया कि हाँ जो हमें चाहिए वही नहीं मिलेगा। तो हमने इस तरह से वहाँ पर रूप वाटिका में विजिट, हैबिट सारी है मैम, बट ये है कि बहुत अच्छे से हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हमें लगता था कि बच्चे वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, बट हम क्लोथिंग में भी और वैसे भी बच्चे, जब मैं देखती हूँ कि इंडियन ड्रेसेस पहनती है, इंडियन कल्चर को फॉलो करती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो फॉलो ही करना हो गया कि हमारा कल्चर वो फॉलो हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं उस चीज़ को। इवन डांस, मम्मी इज अ वेरी गुड डांसर एंड शी लव्स टू डांस, और वो हैबिट मुझ में और मेरे भाई में दोनों में आई है दैट वी लव टू डांसिंग, एंड हमने सीखा भी बहुत टाइम, मम्मी ने सिखाया भी, तो दैट इज ऑल्सो अ हैबिट, द लव फॉर डांस। हाँ, मैंने स्पेशली कथक भी सिखाया कि नहीं हमारे कल्चर को फॉलो करो, कथक भी सीखना आना चाहिए। हाँ, तो जब भी मेरी डॉटर की शादी होगी, जब भी होगी, तो मैं इसको यही कहूँगी कि जो हमारा आउटफिट्स चूज़ करने का है, ब्राइड बनोगी जब तुम, तो वो एक एक चीज़ ऐसी चूज़ करना कि जो पूरा, मतलब ऐसा वो होता है ना कि एक सपना होता है, तो वो पूरा होना चाहिए इसका। कि तो मेरे को बहुत शौक है कि इसकी शादी हो और ये ऐसा मैं इसको उसमें देखूं, ब्राइड के उसमें, और ये उस चीज़ को इंडियनली कल्चर को आगे लेके जाए, इस चीज़ को कि कैसे उसको मैनेज करना, हर चीज़ को मतलब वही बस मेरा ड्रीम है। ये वो बोल नहीं पाती because every time she brings up the topic of marriage I'm like please quiet. मैं भी बोलती है मैंने हाँ, जब भी बोलो कि नहीं, नो अभी नहीं, कि मैं बहुत प्राउड हूँ genuinely, मतलब from where she comes from, she was married at the age of 16 and you know it was very difficult for her to live her life. Now how she has flipped it around, you know, from not having any agency, not having any power, not having any say in कुछ भी छोटी से लेकर बड़ी बात, now she is so independent and so free and वो अपने opinions को आगे रखती हैं, अपनी voice को आगे रखती हैं, उसके लिए मैं बहुत proud हूँ and I always motivate her to do that more often as well, you know, like not to wait to the point of breaking and then keeping your point forward, to always keep your point forward, but she does that so often now and it is really proud. I'm proud of that. I'm proud of the same. अच्छा, yes, me, yes, ये मम्मी indecisive है ना, उनको वो मुझे सब कुछ देखना होता है, मुझे सब कुछ, ये भी ट्राई करूंगी, वो भी ट्राई। Decision maker is your daughter, right? Yes, if she अगर उन पे छोड़ दिया जाए तो till the last moment she would be confused. मतलब रूप वाटिका में भी ऐसा हुआ था कि सारा को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज वीडियो कॉल करने दो डॉटर को, प्लीज सारा जी आप फोन पकड़ लो, हम लोग कोई आपकी
क्लिक नहीं कर रहे ड्रेस, ना कोई वीडियो बना रहे थे, प्लीज़ आप वीडियो कॉल करने दो। ये मुंबई में थी और पहले मैंने अपना आउटफिट चूज़ कर लिया था, तो बट मैं कंफ्यूज थी कि नहीं एक बार मेरी डॉटर देख ले। मैं कॉन्फिडेंट थी कि भाई अच्छी लग रही है, बट अप्रूवल होता है ना कि एक अप्रूवल ले लूँ, तो वो अप्रूवल चाहिए थी इससे मुझे। एंड पापा गेट सो जेलस कि मैं बोलूंगा तो तूने नहीं लिया, हाँ। वो बोल देगी तू तो ले लेती है। तो दैट इज या ग्रेसफुल सारे साल। सेम, ये भी इतना ग्रेसफुली मतलब हर चीज़ कैरी करती है बहुत। It is a mother-daughter bond. It starts very rocky, you know, because one person is trying to make the other person understand what they want, and the other person is trying to make them understand what they would want them to do, things like that. But I would just suggest and I would ask everybody to keep that bond so alive, because it's the most special thing in the world. Like I can tell my mother, मैं कुछ भी ऐसा बात उनसे कर सकती हूँ जो शायद मैं दुनिया में किसी और से नहीं कर पाऊंगी. And how she understands me, nobody else does. So even before I would say that I'm having a bad day, she knows that I had a bad day. So invest time in that bond and always keep it special. Like yeah, do little things that will make the other person very happy. Yeah, मम्मी की बारी है. ओके, तो मुझे भी ऐसे ही लगता है, सारी मॉम्स को मैं यही कहूँगी कि एक बॉन्ड जो होता है जो अपनी डॉटर के साथ उनको बनाना चाहिए, वो ये होता है कि जो भी बात आपको आपकी डॉटर बताना चाहती है वो आपको बिल्कुल फ्रीडमली बताए. आप एक रिश्ता माँ बेटी का तो होता ही है, बट एक फ्रेंड वाला रिश्ता भी आप अपने डॉटर से या अपने सन से वो बॉन्ड रखिए कि वो ज़रूरी है कि आप फ्रीली होके एक दूसरे से आप अपनी बात कह सके, वो सुन सके. आपकी बच्चे को ये ना लगे कि ये बात हम नहीं बता सकते मम्मी को, क्या सोचेंगी. तो वो मदर और डॉटर का ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि फ्रीली होके बात कर सके, वो कॉन्फिडेंट रहे डॉटर को कि माँ मेरी सुनेगी. Just to complete the last thing also, no judgment. Yes. मतलब there can be no judgment. जैसे मम्मी कभी कभी बोलती है मुझे रील बनानी है, तो पहला इंस्टिंक्ट मेरे दिमाग में आता है कि यार मम्मी कैसे लगोगे, बट आई शट दैट इंस्टिंक्ट और मैं उनको बोलती हूँ आप करो, आपको रील बनानी है आप बनाओ. आपको मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर है और डायरेक्टर बोल रहा है कि मम्मी क्या यार रील और फोटो. मैंने कहा तू तो डायरेक्टर है भाई, तेरा कैमरे के साथ नाता है और तुम मुझे कहती है कि भाई ये नहीं मम्मी, ऐसा नहीं. तो कोई जजमेंट नहीं हो सकता both ways. She does not judge me for what I do or what I am, and I never judge her for who she is or what she wants to do. No judgment. Again, We will plan a new function and we will come back as soon as we can. definitely. Because genuinely, it's a full circle. From the moment you step into that store Yes. to the day you take your dress home, that entire experience feels so comfortable. मतलब जब आप एक ऐसी स्पेस में जाते हो जहाँ पे आपको कुछ खरीदना है या फिर कुछ ऐसा लेना है जो आप साथ लेके जाओगे, आप बहुत इंटिमिडेटेड होते हो क्योंकि बहुत ऑप्शंस होते हैं. आपको नहीं पता आपको कौन सा चाहिए, आपको नहीं पता कि आप पे कौन सा अच्छा लगेगा. तो यू नीड पीपल हु सपोर्ट यू, you need people who make you feel comfortable, and you need people who give you honest opinion. And I think all three of this is something that Roop Vatika does offer. It's a very comfortable space. It gives you a lot of options, but you will find something there for you. Or if you don't, people there will help you find something that is there for you. Like I was looking for a fusion dress. मेरे को बस ये स्टेटमेंट थी मेरे पास, मुझे फ्यूजन चाहिए इंडियन और मॉडर्न का. एंड आई बॉट अ बॉडीकॉन ड्रेस दैट हैज अ बनारसी फैब्रिक ऑन टॉप ऑफ इट इन अ वायर फॉर्म, एंड उससे बेटर फ्यूजन नहीं हो सकता था. एंड आई जस्ट फेल्ट कि द ड्रेस वाज वेटिंग फॉर मी एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट ड्रेस टू बी फाउंड, एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट रूप वाटिका वाज द प्लेस दैट कुड मेक दैट हैपन. So yes, I would visit again as soon as I can. और मैंने अपनी मेहंदी ड्रेस भी वहीं से ले ली, जो कि कोई प्लान नहीं था. तो तारा मैम ने बोला कि नीचे चलते एक बार, मैम आप विजिट देखो, आप लेना मत. तो ऐसे पापा भी बहुत जनरस हो जाते हैं उधर कि एकदम ले लो. और सबसे अच्छी चीज़ एक ये चीज़ लगी आपके स्टोर में, जैसे हम कई स्टोरों पे हम गए तो पहला था मैम
कितने तक का बजट है आपका, ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ऑकवर्ड हो जाता है आपके लिए कि आप कोई बजट बताने का, आप जब आप शॉप पे जाते हो और वहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल सा फील होता है कि एक बजट, और फिर उसके बाद आप फॉर्म फिल करवाओ कि आपको ये आपके हमारे पहले ये ऑप्शंस हैं, आपको इनको टिक ऑन करना है। तो मैंने 2-3 स्टोर पे ऐसे विजिट किया, मुझे ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगी कि हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशंस, तो फिर आप वहाँ पर ना थोड़े रिजिड हो जाते हो, बाउंड हो जाते हो कि यार ये अभी से इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो आगे उनसे हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि, तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये चीज़ आपके स्टोर में बहुत अच्छी थी। वेलकम करने का जो एक क्लाइंट को वेलकम करने का जो वो अप्रोच थी आपकी तरफ से, वो बहुत ही अमेजिंग थी। वो रिश्ता ट्रांजैक्शनल नहीं है, हाँ, जबकि वो ऑन पेपर इन थ्योरी ट्रांजैक्शनल लग सकता है, पर वो है नहीं। एंड दैट्स अ बिग कुडोस टू द टीम दैट दे डोंट मेक इट ट्रांजैक्शनल। इट्स अ इमोशनल थिंग। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ लेने गया है या अपनी माँ की एनिवर्सरी के लिए कुछ लेने गया है, उनके लिए वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। एंड आई थिंक रूप वाटिका अंडरस्टैंड्स दैट कि बाइंग अ ड्रेस फॉर एन ओकेजन इज नॉट जस्ट ट्रांजैक्शनल। और एक ड्रेस थी जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी, वो कुछ समथिंग 75 अप्रॉक्स थी, और जो मैंने बॉडीकॉन लिया वो उससे थोड़ा कम था। तो बट उन्होंने मतलब जब मैंने पहना तो उनका कंसर्न ये नहीं था कि प्राइस बहुत वैल्यू कर रहा है आपके लिए, नहीं इतनी प्राइस के तो यही ले लो, बट आप पे क्या जच रहा है वो चीज़ उन्होंने प्रेफरेंस हमें दी कि मैम ये जच रहा है आप। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ, कम से कम कस्टमर को आप समझ रहे हो। तो ये रूप वाटिका की बहुत अच्छी बात लगी मुझे, तो हमें डेफिनेटली अगेन विजिट करेंगे। जैसे ही कोई फंक्शन हमारा होता है, हम श्योर आपके वी हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड द स्टोर टू अ लॉट ऑफ, यस, तो कमीशन भी बनता है हमारा। और उसके बाद एक मेरी फैमिली फ्रेंड की डॉटर है, वो मेरा मतलब उन्होंने पता कि हम रूप वाटिका गए, तो वो भी बाय करने उस पे ड्रेस, 2 ड्रेसेस बाय करी है उन्होंने। हाँ, जस्ट हमारे बाय करने के बाद ही कि मैं भी देख के आती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू so much. Thank you for making us a part.